101. Their attitude towards the sadhaks. साधकों के प्रति उनका मनोभाव. You need not think that anything can alter our attitude towards you. That which is extended to you is not a vital human love which can be altered by external things. It remains, and persistently we shall try to help and lift you up and lead you towards the light, where in the union of soul and heart you will recognize the friend and the mother. बहुत जबरदस्त है ये, क्योंकि वाइटल ह्यूमन लव के अलावा हम जानते नहीं, और ये जो श्री अरबिंदो और माँ जो एक्सटेंड कर रहे हैं ये प्योर लव है. तो ये यूं तो प्लेन से शब्द हैं, और एक डिवाइन लव आपको किस तरीके से प्रेम कर सकता है. तो यू डिड नॉट थिंक दैट एनीथिंग कैन ऑल्टर आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू. कोई बड़ी बात नहीं कि ये दिलीप कुमार रॉय को लिखा हो. That which is extended to you is not a vital human love which can be altered by external things. Vital human love तो external चीजों के अंदर फेरबदल से उसमें फेरबदल आ ही जाएगा. It remains, and persistently we shall try to help and lift you up and lead you towards the light. हम तेरे को सतत ही ऊपर उठाने और प्रकाश की ओर लेके जाने के अंदर. It remains, प्रेम रहता है, और persistently we shall try for this. In the union of soul and heart you will recognize the friend and the mother. I was overjoyed to read your letter. First, because it relieved me from the anxiety which your persistent trouble had given, and most because of the clarity of consciousness which has liberated you. Yes, that was the main difficulty, that and the clinging to wrong ideas which it has created. You should never doubt about the reality and sincerity of our feeling towards you, mine and the mother's, for it creates a veil and separates where there should be no separation, and it is a first barrier against that openness which is necessary if one is to receive fully or even at all from the Guru. Of course, I saw that something had blinded you and was keeping you unconscious of the source of the trouble, but there was needed a certain clarity of the soul to remove it. Now that it has come, I trust that it will keep the mind clear and free the ways of the spirit. क्या अर्थ हुआ है देविका जी शुरू से इसका? I was overjoyed to read your letter. First, because it relieved me from the anxiety. थोड़ा जोर से बोलो. First, because it relieved me from the anxiety which your persistent trouble had given, and most because of the clarity of consciousness which has liberated you. तो यहाँ पर श्री अरविंद कह रहे हैं साधकों कि मैं बहुत ज्यादा खुश था कि तुम्हारी लेटर पाके, क्योंकि उससे मेरे को एक तो ये रिलीफ मिला कि भाई तुम्हें जो एग्जाइटी है, which it relieved me from the anxiety which एंजाइटी मेरे को थी. अच्छा. First, because it relieved me from the anxiety. मेरे को एंजाइटी थी, उससे मैं रिलीव हो गया, और वो एंजाइटी किस चीज ने दी? Which your persistent trouble had given. वो एंजाइटी तू कंटिन्यूअसली ट्रबल में था, इसलिए मैं मेरे एंजाइटी थी. अच्छा, आप समझिए श्री अरबिंदो जो शब्द काम में ले रहे हैं, ये अलूफ कोल्ड कोई गुरु किसी और चेतना में रह रहे हो जिसके फर्क नहीं पड़ रहा हो, और इनके शब्द वास्तव में वो मीन कर रहे हैं भाई. बिल्कुल. आप इसमें और जाने की कोशिश करो, और उन स्टेट्स के अंदर या उस मनोभाव में जाने की कोशिश करो जो आपका गुरु
ह्यूमन लव तो आप जानते हो एंजाइटी कब हो जाती है, बीइंग ए मदर या पेरेंट जो है, आप एंजाइटी जानते हो। ये शब्द अगर श्री अरबिंदो काम में ले रहे हैं और एक एक जने के लिए वो इतने तत्पर हैं, या एक एक जने के लिए अगर ये महसूस कर रहे हैं, और फिर उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भक्त जो हैं वो ये दोषारोपण कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है, आप तो ऊपर बैठे हो। वो यहाँ सुप्रामेंटल लेके आ रहे हैं, धरती का सारा कचरा साफ करने का या उसका सबकॉन्शियस का। हम जानते हैं वो क्या कर रहे थे, इतना तो सबसे पहले तो मैं ओवरजॉयड था तेरे लेटर से। पहले तो इसलिए क्योंकि मेरी एंजाइटी से मैं रिलीव हो गया। वो एंजाइटी जो कि तेरी परसिस्टेंट ट्रबल के कारण मेरे को मिली थी, एंड मोस्ट बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज लिबरेटेड यू। और दूसरे में ओवरजॉयड किस बात से था, तेरी कॉन्शियसनेस में क्लैरिटी आ गई, विच हैज लिबरेटेड यू, जिसने कि तेरे को लिबरेट कर दिया। अच्छा, ये एक तय बात है कि आप अगर मन में भी चाहो कि आपके साथ ये चीज हो जाए, आप इस चीज को महसूस कर पाओ या आपकी चेतना में क्लैरिटी आ जाए, आप कोशिश कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, सामने वाला एकदम गलत समझ सकता है इसको। जैसा कि प्रयास हम कर रहे हैं कि इसके अंदर जब क्लैरिटी आती है या वो चीज आती है, तो वो जो जॉय देती है, और इसको मिसअंडरस्टैंड तो किया ही जाएगा। यस, दैट वाज द मेन डिफिकल्टी, दैट एंड द क्लिंगिंग टू रॉन्ग आइडियाज। मेन डिफिकल्टी क्या थी? क्लिंगिंग टू द रॉन्ग आइडियाज ये तो दूसरी चीज थी, एक डिफिकल्टी और बता रहे हैं, दैट एंड द क्लिंगिंग टू रॉन्ग आइडियाज। वो और रॉन्ग आइडियाज की क्लिंगिंग, दैट वाज द मेन डिफिकल्टी। मेन डिफिकल्टी थी दैट क्या होगी फिर? जो कॉन्शियसनेस की क्लैरिटी नहीं हाँ, थी। क्लैरिटी नहीं थी तेरे को। ये पीड़ादायक चीज है, ये व्यक्ति महसूस नहीं करता जब तक आप इसमें नहीं हो। एंजाइटी भैया, एंजाइटी, आपको उत्तेजना हो जाती है ना कोई चीज की, आदमी सो नहीं पाता, कोई न्यूज ऐसी आ गई रात को, आपके एंजाइटी हो गई, तो रेस्टलेसनेस हो गई आपके। एंजाइटी क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? एंजाइटी, चिंता। एंजाइटी परेशानी न बोलेंगे। हाँ, व्यग्रता। उत्कंठा, व्याग्रता है उत्कंठा नहीं होता ना, उत्कंठा तो दूसरी चीज हो गई, फिक्र, चिंता, वो नहीं, वो उसका प्रयोग जहां होगी आप भैया, आपको कोई खबर आ जाती है, या कई जनों के पैनिक अटैक आते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं कोई चीज से। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दो, इससे मां श्री अरबिंदो की डीलिंग व्यक्ति की, और ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, ये सामान्य शब्द बिल्कुल नहीं है। इसमें जाओ तो आप कई चीजों में जो हमारी डीलिंग है उसको समझ पाओगे कि श्री अरबिंदो को कौन सी चीज ट्रबल कर रही है जो दूसरे के लिए मैटर ही नहीं करती। वो कंटिन्यूअसली श्री अरविंद इस चीज से ट्रबल्ड थे, और दूसरे सामान्य चेतना को उस चीज का आभास तक नहीं होता। ये देखिए आप तो दैट एंड द क्लिंगिंग टू रॉन्ग आइडियाज विच इट हैज क्रिएटेड। क्लैरिटी यदि चेतना में नहीं होगी तो वो रॉन्ग आइडियाज क्रिएट कर देगी, और इसलिए अगर रॉन्ग आइडियाज है आपके, सहज रूप से इसकी क्लिंगिंग हो ही जानी है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं दैट मेन डिफिकल्टी ये है कि दैट मतलब तेरे ये चेतना में क्लैरिटी नहीं थी। इसीलिए हम जो ये अनुशासन की बात करते हैं, पता नहीं ये बीच में कोई खंडन क्यों करता है इस चीज का। अपने ग्रुप में आप देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूअस, हम स्ट्रिक्टली साधना के दृष्टिकोण से ये बातें कर रहे हैं,
नहीं, ये इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। ये सत्र का टाइमिंग कुछ और ही होता है यदि हम प्रोफेशनली करते तो। जैसा कि सब जगह किया जा रहा है 9 से 11, शाम को 3:30 या 4 से 6 बजे तक, वही सूट करता है लोगों को। हम इसको ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि केवल प्योरली साधना के दृष्टिकोण से आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती यदि आपकी जीभ प्रबल है, यदि आपके सेंसेशंस प्रबल हैं। ये हो नहीं सकता। और यदि क्लैरिटी नहीं है तो पाप के लिए सारा रास्ता खुल गया। और इंडिपेंडेंटली पाप नहीं है कि आपने किसी की हत्या कर दी वो पाप है, या कोई आपने झूठ बोल दिया वो पाप है। ये नहीं। रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन, थॉट, ये सब पाप है। मां से उद्भूत होनी चाहिए, उससे उत्पन्न होनी चाहिए कोई भी चीज, वो सही है। और अपने आप में कोई इंडिपेंडेंटली पाप नहीं है। यू शुड नेवर डाउट अबाउट द रियलिटी एंड सिंसियरिटी ऑफ आवर फीलिंग टुवर्ड्स यू। अच्छा, इसके साथ साथ ये और देखो कि श्री अरबिंदो को बार बार ये अफर्म करना पड़ रहा है। अगर उसको करना पड़ रहा, अब हमारे ऊपर भी डायरेक्ट करके देखो अब इसको। यार ये क्या है? ये हमारी नेचर ऐसी ही है। ये जानते हुए अब हमको अपनी नेचर के साथ क्या करना चाहिए? और डिसाइसिवनेस, क्योंकि वो बेवकूफ मेरे को मेरे तरीके से बना रही है, आपको आपके तरीके से बना रही है। निश्चित साधना अपनाने के बाद, पहले नहीं। पहले जरूरत ही क्या है बेवकूफ बनाने की? अरे मूर्ख बनाने की जरूरत क्या है? माइन एंड दी मदर्स, मेरी और माँ की जो फीलिंग तेरे लिए है उसकी रियलिटी और सिंसियरिटी को डाउट नहीं करो। रियलिटी कि हाँ हम करते हैं, ये सत्यता, और वास्तव में करते हैं सिंसियरिटी, उसको डाउट मत कर। फॉर इट क्रिएट्स ए वेल, क्योंकि इससे एक बीच में पर्दा आ जाता है। एंड सेपरेट्स, और वो सेपरेट कर देता है। वेयर देयर शुड बी नो सेपरेशन, वहां सेपरेशन ले आता है जहां सेपरेशन नहीं होना चाहिए। एंड इट इज ए फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट दैट ओपननेस which is necessary if one is to receive fully or even at all from the guru। और उस ओपननेस के अंदर पहला बैरियर इस चीज से आ जाता है, अविश्वास से। और वो ओपननेस जरूरी है किस चीज के लिए? रिसीव फुल्ली या एट ऑल, जरा बहुत भी गुरु से प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ओपननेस चाहिए। ये वाला वेल लियाता है। और वेल किस बात का है? यदि आपके थोड़ा बहुत भी डाउट आ गया तो ये आपके और उसके बीच के अंदर बैरियर ले आएगा। इसमें बात अब आप ये करो, फर्स्ट हैंड श्री अरबिंदो से कैसे मिले, कैसे मिल सकते हैं? संभावना है क्या इस बात की? आप भौतिक उपस्थिति में हो सकते हो, जो कि ये है, पर ये डायरेक्टली उनसे ओपननेस में नहीं है, इसलिए उनसे रिसीव एट ऑल, इवन एट ऑल शब्द देखिए आप, वो रिसीव नहीं कर रहा। तो बात गुरु की उपस्थिति या उसकी नहीं है, बात आपकी ओपननेस की है। आप यदि ओपन हो तो गुरु हो चाहे नहीं हो, वो दूर हो पास हो, भौतिक रूप से हो या भौतिक रूप से नहीं हो, मैं कह रहा हूं गुरु ये बात कह पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप शब्द तो देखिए, ये सारी चीज को देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं भाई, इसमें तो डाउट नहीं हो सकता, ये तो रिटर्न है। ऑफ कोर्स आई सॉ दैट समथिंग हैड ब्लाइंडेड यू। ऑफ कोर्स मैंने देख लिया कि कोई चीज ने तेरे को अंधा कर दिया। अच्छा, आपको ये सेंस कि हाँ मैं साधना ही कर रहा हूं, ये इसके साथ साथ और प्रबल भी हो सकता है। श्री अरविंद से दूरी करके आप में ये भाव, अरे कुछ तो भाव राही होगा उसके, जो साधक है और श्री अरविंद के समय है, साधना तो अपनी योग तो अपना लिया ना उसने। एंड वॉज कीपिंग यू अनकॉन्शियस ऑफ द सोर्स ऑफ द ट्रबल, और तेरे को ट्रबल का जो सोर्स है उससे अनकॉन्शियस बनाए हुए था। बट देयर वॉज नीडेड ए सर्टन क्लैरिटी ऑफ द सोल टू रिमूव इट। पर क्लैरिटी ऑफ सोल चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। क्लैरिटी ऑफ सोल तब आती है जब आपके अंदर सिंसियरिटी और प्योरिटी और ओपननेस टू गुरु हो। तो अगर ये हो तो ओपननेस बंद हो जाती है, जो जैसे कि उसकी हो गई।
ओपननेस बंद हो गई तो श्री अरबिंदो को एंग्जाइटी इस बात की थी, अब इसको कह भी नहीं सकते। अगर आपके ओपननेस नहीं हो तो आपको कहा जा सकता है कि ये बताइए। अब वो ओपननेस क्यों नहीं आते? क्योंकि डाउट है। डाउट नहीं, इनसिंसियरिटी है, वो डाउट के लिए स्थान कर देता है। आपके एम्बिशंस हैं, आप अपने तरीके से चीजें चाहते हो, आप सेल्फ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, आप अपने आप पे ही केंद्रित हो, आपको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। नाउ दैट इट हैज कम, पर अब जबकि क्लैरिटी आ गई है, आई ट्रस्ट दैट इट विल कीप द माइंड क्लियर एंड फ्री द वेज ऑफ द स्पिरिट। तो अब मेरे को विश्वास है कि वो माइंड को क्लियर रखेगी और आत्मा के मार्गों को फ्री रखेगी। उससे पहले नहीं हो सकता। आप कह रहे हो मैं पढ़ के कर लूं, ये कैसे हो सकता है ये बताइए। इस लेटर के बहुत अर्थ निकलते हैं। ये एक्चुअल साधना का मार्ग है कि हमने खाली ये योग, अष्टांग योग कर लिया, वो कर लिया, ये तो डायरेक्टली अगर इंटरवेंशन गुरु का नहीं हो, ये संभावना ही नहीं है कि आपको कहा जा ही नहीं सकता। श्री अरविंद आपको नहीं कह सकते, ये देखिए आप। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ रहा है। अनिल जी, इसमें कोई बात? नहीं नहीं, ठीक है। अब वास्तविकता तो यही है, मतलब यही। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम साधना के बारे में सीरियस हैं। हम प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं अपनाए हुए। हमारी भाषा जो है या हमारी सारी चीज, ये आप विश्वास कीजिए, ये प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है। बिल्कुल। और इस दृष्टिकोण से है, नहीं तो इसके पीछे ये कोई समय नहीं हुआ, ये कोई एनर्जी देने का मतलब ही नहीं है इस तरीके से। पर मैं जानता हूं कि ये इतने समय बाद भी ये पूरी बात, ये समझ में, एक्चुअल इसके क्या मायने हैं, ये समझ में ही नहीं आया। मेरे पास आप रह सकते हो, पर मेरे को कोई जरूरी नहीं कि मैं इतनी ओपननेस फील करूं कि आपको जो है वो बात बता दूं। वो ही चीज श्री अरविंदो यहाँ, इसलिए अब ये तो रही नहीं ना बात की भाई श्री अरविंद तो कर ही पाएंगे, आप नहीं कर पा रहे, या जो नहीं कर पा रहा श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात। तो भगवान स्वयं मान रहे हो आप श्री अरविंद को, तो आपके जो बिल्कुल। नोशंस हैं कि भगवान तो कर ही सकते हैं, भगवान की लिमिटेशन क्या हो सकती है, या भगवान भी उसके जो नेचर को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ये बात है कि भगवान आपकी नेचर के हिसाब से चलते हैं, वो लिमिटेशन ये वाली है। ठीक है, वो वाली को आप देख लीजिए इसमें। जी। नहीं तो श्री अरविंद स्वयं विद्यमान है, व्यक्ति आश्रम में रह रहा है, साधना अपना ही ली, तो कहने को तो गुरु अपना ही लिया उसने, फिर क्या दिक्कत है? क्लैरिटी नहीं रहती, सोल की क्लैरिटी बंद हो जाती। कहने को आप 50 साल चाहे आश्रम में रहे, 1 इंच उल्टा चले गए आप कहीं ना कहीं, क्योंकि पर्दा लिया है। यही है इस लेटर में। ये कोई व्यक्ति साफ कर सकता है, आप अपने बलबूते पे कैसे करोगे? अनिल जी, करें कैसे, पता कैसे चले इस बात का? बहुत ही मुश्किल है साहब, कोशिश। अगर रोज कोशिश करते हैं फिर भी ले दे के कुछ नहीं, नहीं ढाक के नहीं, 3 फाड़, मतलब वही वो आपकी नहीं कह रहा मैं ये कह नहीं रहा हूं नहीं, कि मतलब फिर भी आपको मतलब गुरु, बहुत। भाई गुरु सचेत करवाएं, आपके जो गुरु हैं वो आपको बताएं कि आप यहाँ अटके हुए हो। और उसको फिर मतलब रब गुरु के ज्यूडिशली प्रति अपने आपने फॉलो वेल करें। लगा दिया, बीच में पर्दा हाँ, लगा दिया। फॉलो भी नहीं अब करते आपको ना। बताए कौन? आपको बताने वाले आपके गुरु हैं, बिल्कुल। गुरु आपको बता नहीं पा रहे। अब क्या करें? श्री अरविंद है सामने गुरु, हर कोई गुरु नहीं है, और फिर भी हम सारे के सारे इस बात से चेतते नहीं है। ये तो विडम्बना है ही, बिल्कुल। क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हो इस बात को? हाँ नहीं, बिल्कुल, मतलब कोशिश करने के बावजूद भी जो है एक कदम नहीं चल पा रहा, मतलब देख रहा कोशिश हूँ नहीं, मतलब आप ये। कहने को साधना अपना लो, हाँ तब तो ये भी इश्यू अराइज होगा, उससे पहले तो अराइज ही नहीं होगा। जो अपन सो कॉल्ड जो भी कुछ काम भी करना इस तरफ चाह रहे हैं ना, वो उसमें भी जो है रोज कुछ ना कुछ मैं देख रहा हूँ दिक्कत आ जाती है, मतलब और चाहने ये के शब्द बावजूद। जैसे श्री अरविंद ने ये कहा कि आप रियलिटी और सिंसियरिटी मेरे प्रेम की, उसके ऊपर संदेह मत करो, हम्म। इसको ये कह रहे हैं अपने भक्त को।
हो सकता है ये दिलीप कुमार रॉय ही हो, कि तुम मेरे प्रेम की रियलिटी और सिंसियरिटी को डाउट मत करो। यही बात क्या मैं आपको कह सकता हूं कि हम जिस जगह से ये कंडक्ट कर रहे हैं उसको क्या आप बिल्कुल फ्लॉलेसली ले सकते हो और विश्वास कर सकते हो? क्या एक में ये विश्वास कर सकते हो कि भी कम से कम चलो आप कहेंगे वैसे कर लेते हैं? भाई कहीं तो आपको भी डायरेक्टली श्री अरविंद से हम कैसे मिले, तो डायरेक्टली ये लो ये पत्र और आगे पढ़ लेते हैं। आप इसकी गंभीरता समझिए इस मार्ग की। आगे है, when these moods come upon you, why do you run away from the mother and avoid her? जब ये मूड तेरे ऊपर आ जाते हैं तो तू माँ से दूर भागता है और उसको अवॉइड करता है, जिसको आप ये अगर आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी पर में अभी आप जो अगरबत्ती वगैरह कर रहे हो, जब माँ आपके समक्ष होगी आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो। ये तो अब श्री अरविंद के शब्द हैं, आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि भी ये गलत है। और ये एक नहीं है, ऐसी भरमार आ जाएगी क्योंकि हम तो पूरा पढ़ रहे हैं। Why do you not come to her? Tell her frankly what you feel and what is in your mind, and let her take the trouble from you. The reasons you give for wishing to leave us are not good reasons at all. जो कारण तू तू हमको छोड़ने के बता रहा है वो अपने आप में वास्तविक कारण नहीं है। If you want to see the richness and greatness of God, you will, if you wait, see more of it with us than you ever can outside. इसने क्या कह दिया मां श्री अरविंद को? क्या कह दिया इसने? The reason you give for wishing to leave us. ये रीजन दे दिया ना बात का। क्या कह दिया उसने? ये कि जो मूड्स आ रहे हैं मेरे, नहीं नहीं, इस वजह इसने से कह दिया कि मैं गॉड की रिचनेस और ग्रेटनेस देखना चाहता हूं। if you want to see the If you want to see the richness and greatness of God, you will, if you wait, see more of it with us than you ever can outside. इसने ये कह दिया मैं बाहर जाके भगवान की रिचनेस और ग्रेटनेस जगत में जो व्याप्त है, यहाँ आपने एक जगह यहाँ पोस्ट ऑफिस में कन्फाइन कर दिया। आपकी क्या एक्टिविटी है? बच्चे को आप क्या करवाते हो? खाली एक वही पुस्तक पढ़वा दी और उसका ये कर दिया। अरे बाहर जाने दो, एक्सपोजर दो इसको, तब सीखेगा ये। बाहर जाओ, जगत में क्या क्या काम हो रहे हैं उनको देखने दो। तो इसने भाई आश्रम में रह रहा है, आज तो विजिटर्स दुनिया भर के हैं, पर जिस समय ये कह रहा है उस समय हैंडफुल रहे होंगे। अच्छा, आश्रम में अगर आप आश्रम लाइफ में हो, बाहर वाला तो विजिटर है, किसी भी आश्रमाइट का जिस भी डिपार्टमेंट में उसकी लाइफ किस तरीके की है? वो सुबह उठता है, एक टीचर अगर है तो अगर वो प्रणाम करने आया आया नहीं आया इस पे तो कोई किसी को कोई बाध्य है नहीं, प्रणाम करो चाहे पूरे दिन ही ना करो। मतलब ऐसे लोग हैं जो खाली एक गली छोड़ के ही वहां, मतलब आश्रम डोर से उसका गेट दिखता है वहां, उस वो कह रहा है मेरे को 3 महीने हो गए समाधि पे आए हुए, प्रणाम किए हुए। हमारे दिल में ही माँ है। वो व्यक्ति स्कूल में जा रहा है तो 6:45 7 बजे स्कूल पहुंच जाता है, वो से लेके 11 बजे तक है शायद, या अलग अलग टाइमिंग है। खाना खा के फिर दोपहर में 3 बजे है। जो ज्यादा एंगेज है उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। 3 से लेके फिर बाद में उनको 5 5:30 बजे तक की उनकी है। उसके बाद में आपको कोई काम नहीं है। हाँ, आजकल ऑनलाइन कर दिया, आपके मोबाइल के ऊपर होमवर्क भी आएगा और भी आएगा, क्लास वर्क है। और अगर आप सिंसियर हो और या टीचर आप किस सब्जेक्ट के हो, उसमें कितने आपके लिए और लोग भी हैं। फ्रेंच में इतनी दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में। पर आप यदि संस्कृत के हो तो संस्कृत के टीचर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने थे वो अब लगभग इनकेपेसिटेट हो गई, हम चले ही गए वो दुनिया से। नए जो आ रहे हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच तो एक अलग चीज हो गई। या आप कोई मैथ्स की बात करो या इनकी, इनमें तो मिल जाएंगे आपको। संस्कृत के अंदर जो है, या कोई मान लो कोई स्पेसिफिक चीज हो, तो ये कह रहा है कि भी इस तरीके का आपका रूटीन हो, या कोई डाइनिंग हॉल वाले का रूटीन हो जो सुबह के शिफ्ट में है,
या कोई ये कि अब उसके पास कोई विशेष कोई चांस है नहीं, शब्दा में कोई गया साहब, वो पैकिंग डिपार्टमेंट में ही है, वही बिल्डिंग, वही किताबें, मतलब उसके कोई रूटीन तो सेम वही का वही है बरसों तक। अच्छा, इसमें कोई चांस भी नहीं है। आश्रम की वो बिल्डिंग है वैसी की वैसी, खाली उनको समय समय पे कोई रिनोवेट करने के नाम पे रंग कर दिया जाता है, क्योंकि वो माँ की वैसी परफेक्टली वैसी ही है। कोई टूट फूट कोई हो तो बेसिक तो फर्क तो बिल्डिंगों में है नहीं, क्योंकि उनको तोड़ के वैसे किया जा रहा है। वही बिल्डिंग, वो कह रहा है जी मैं तो माँ के समय से वैसी की वैसी है ये, माँ जैसी आई थी वैसी की वैसी है ये। अगर वाइटल में जी रहे हो तो आप कितने एक दिन कैरी ऑन कर सकते हो वैसे सेटअप से कि जो फर्क ही नहीं हो। वही किसी से वहां काम करने वाले पर्सनल किसी से इक्वेशन हो गई प्लस या माइनस, अब आप क्या करोगे? आप कोशिश ये करोगे कि साहब ट्रांसफर, किसी सरकारी नौकरी में तो ट्रांसफर हो जाए, यहाँ कहाँ ट्रांसफर हो जाए, कहाँ जाओ मतलब। जब तक आपकी इक्वेशन बढ़िया चल रही है तब तक तो ठीक है, पर जब इक्वेशन उस व्यक्ति से या उससे ठीक न हो और वहीं आपको जाना मजबूरी हो जाए कि वहीं जाना है, ऐसा पोस्ट ऑफिस में पंकज जी मिलेंगे अपने को, अब क्या करो आप? दिक्कत हो गई ना इस बात में। आप जस्ट उस जगह रख के रियलिस्टिक तरीके से, एक्चुअल में दूसरे क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? क्योंकि वो आश्रम लाइफ को, वो उनको नहीं पता कि वहां क्या अनुशासन है। अच्छा, अब और उस समय के आश्रम लाइफ में भी फर्क पड़ गया। आज की लाइफस्टाइल के अंदर पर अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जहां, अब पौंडीचेरी में कूलर तो काम करता नहीं क्योंकि डैम्पनेस है, एसी उनके पास है नहीं। अब ऐसी उबलती गर्मी के अंदर पंखा है, वो चाहे कितने पे भी कर लो, पंखा तो पंखा ही है। आप टेम्परेचर्स तो जानते ही हो वहां के, और डैम्पनेस उसको और बुरा कर देती है कई बार, क्योंकि एनी टाइम क्लाउडी हो जाता है, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बहुत भयंकर हो जाती है। आप सुबह से क्लास ले रहे हो, सारी चीजें हैं, और उसमें आप ये देख रहे हो दूसरा कुछ कर नहीं रहा, उसको सारी सुविधाएं हैं, एसी लगाया हुआ है, कार लगाई हुई है, अच्छा मकान है, मेड भी है, एक दिन नहीं आ जाएगा। साइकिक के अलावा और दूसरा एटीट्यूड बताओ जिसके मन में नहीं आ जाएगी, अरे पहली बार में ही आ जाएगी ये बात तो। और अगर एक बार ये पॉइजन घर घर कर गया तो ये पूरा परिणाम लेके, मतलब ये बीज ऐसा है जो उग के और पूरा पेड़ बनाएगा। साइकिक के अलावा दूसरी चीज बताओ जो इसको रोक पाएगी, बताओ एक बार। तो इसलिए ये इसने ये कह दिया श्री अरविंद को कि वो रिचनेस और ग्रेटनेस ऑफ गॉड देखना चाहता है। अब इस लाइन से आप तो देखो नहीं समझ पा रहे ना कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है जगत के अंदर व्याप्त जो भगवान की रिचनेस और वो है, मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, यहाँ कुछ है ही नहीं। उसको न माँ दिख रही न श्री अरविंद दिख रहे। आप ये कह रहे हो जिनके लिए जीवन, और अभी भी प्रॉब्लम यही है, आपकी भावना तक तो आप कह रहे हो पर प्रैक्टिस में अभी तक नहीं, न तो ला रहे न ला सकते। ये इस तरीके से नहीं होती ये चीज। एंड इफ यू वांट टू सी द हिमालयाज, इट विल बी मच बेटर इफ यू, फॉर यू टू सी देम हियर आफ्टर विथ योर मदर बिसाइड यू। अगर तू हिमालय देखना चाहता है तो बढ़िया ये होगा कि माँ तेरे साथ हूं। अरे तू उनसे ओपन हो, उनसे बात कर, यूं भाग जाएगा हिमालय देखने के लिए। उसने कह दिया कि मैं रिचनेस देखना चाहता हूं, भव्यता, मैं तो कैलाश में जाऊंगा, या जो भी उसने कह दिया होगा। यू आर क्वाइट मिस्टेकन व्हेन यू से दैट इफ यू विल गो देयर विल बी नो डेविल लेफ्ट इन द आश्रम। ये दिलीप मोर रॉय है, ये उन्हीं का है ये। और ये ज्यादातर पत्र और जो प्रेम से भरे हुए हैं श्री अरविंद के, वो ज्यादातर इन्हीं को ही हैं। और कई लेटर्स तो आप, ये हमको और दूसरे मूड में होना पड़ेगा श्री अरविंदो का प्रेम महसूस करने के लिए। इन लेटर्स के अंदर उनका प्रेम भरा हुआ है। अगर उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे और सारे दिन इससे सराबोर नहीं रह पा रहे, तो इसका मतलब आप टेक्स्ट में गए ही नहीं, आप और ही कहीं हो। अगर श्री अरविंद का प्रेम जो है वो नहीं महसूस कर पाए तो फिर बचा ही क्या जीवन में। और उन इन पत्रों में वो पूरा पूरा है। ये कह रहा है कि जब मैं चला जाऊंगा तो आश्रम से डेविल भी चला जाएगा, मैं, मेरे अंदर डेविल है, या जो भी इसने कह दिया। द डेविल इज नॉट हियर बिकॉज ऑफ यू। आश्रम में जो डेविल है
वो तेरे कारण नहीं है. He is here because he wants to give trouble to the mother and spoil her work. And what he chiefly wants is to drive her children away from her. आपसे दूरी कर लेगा. वहां आश्रम में रहते हुए भी वो कह देगा कि भी मैं तो नहीं मिलूंगा मां से, आपके और ही चीजें आ जाएंगी. मैंने आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बार बार कहा ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यही वाली चीज है, आप फेस नहीं करते, आप कन्नी काटने लगते हो. भाई मेरे को बता दो, मैं काम तो कर ही रहा हूं. अरे बात काम की उसकी नहीं है. हम बैठे हैं उसमें कितनी फ्लॉलेसनेस है, 2 जने बैठे हैं, हम दोनों बैठे हैं मान लो, उसमें कितना ट्रांसपेरेंस हो पा रहा है, मैं कितनी चीज कह पा रहा हूं. आप समझते हैं कोई व्यक्ति बैठा तो है, गलत बात नहीं बोल रहा वो, पर आप कह थोड़ी पा रहे हो उससे. वो आपसे ऊपर ऊपर की बात करता है, मतलब कि जी मेरे को बता दो मैं ईमानदारी से कर दूंगा. वो बोल नहीं रहा, पर ग्रजिंग है वो. उसको ऐसी है जैसे कोई भारी चीज है, उसको खिसकाने में बहुत मेहनत लग रही हो. वो दूसरा व्यक्ति है, नेचर उसकी कोई बहुत एंडोव्ड नहीं है, ऊपर नीचे बोलता है, पर उसके खुलापन है. ये व्यक्ति जाएगा, जिसके खुलापन है ये जाएगा. और जो ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल एटीट्यूड, जी मैं तो ठीक कर रहा हूं, मैं तो अपने समय पे उठ जा रहा हूं, मैं गलती नहीं कर रहा. जनरली लोग कहते तो मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने गलत कहा आपसे. अरे कहने की उसकी बात नहीं है. ऐसा व्यक्ति आपके माहौल में आके बैठ जाता, भारीपन आ जाता है ना. ये तो आपने महसूस किया ही होगा, रात दिन का काम है ये यदि गुरु के प्रति आ जाए, और यदि का काम नहीं है, वो तो कह रहा है यहाँ यदि थोड़ी है. अरे यहाँ छिपी बात थोड़ी है, तो लेटर दर्ज हो रहे हैं भाई. ये हमारी प्रकृति की गांठें हैं. आपका हम दिव्य जीवन की ओर चले जाएंगे, हाँ चले जाओगे, पर इन गांठों को तो जब आप साधना लेोगे तो गांठें ये पहली बार तो खुलनी शुरू होंगी. आप समझ रहे हैं इस चीज को. आपका मैं डायरेक्टली श्री अरविंदो को या माँ को अप्रोच कर लूं, वो भौतिक रूप से उपस्थित हो और आपको लिखने की सुविधा हो, तो आपको नहीं कह सकते. आप देख पा रहे हैं कि खुद बिल्कुल. दिलीप कुमार रॉय को ये नहीं कह पा रहे, या जो कह रहे हैं वो, हालांकि इनको कह पाते हैं. ये विशेषता है कि इसीलिए इतने पत्र आ गए इनके. ही इज हियर क्योंकि वो माँ के काम को बिगाड़ना चाहता है और उनके बच्चों को यहां से दूर हटाना चाहता है. अच्छा, इसके अंदर जैसे आप कह दो नहीं हो सकता, उसके लिए वहां जो रिचनेस ऑफ गॉड की बात कर रहा है वही हो, कोई व्यक्ति जाए, तो आप कह दो हो सकता है इसकी नियति यही होगी, वही ठीक हो. क्या इस व्यक्ति के लिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये तो श्री अरविंद है, इसलिए आप ये कहोगे. ये श्री अरविंद डिसाइड करेंगे कि किसके भाई लिए अभी है. तो आप ये कह दोगे भाई श्री अरविंद है सामने. अगर ये पत्र श्री अरविंद का नहीं हो तो अपन तुरंत ये फिर बाद में ये कहें कि नहीं नहीं हो सकता, इसके लिए भगवान ने यही डिसाइड किया हो, क्योंकि वो कह रहा है भगवान की रिचनेस में वहां देखना चाहता हूं. आप बिल्कुल. समझ रहे हैं इस चीज को. बिल्कुल. ये बिल्कुल. धोखे हैं, ये महा धोखे हैं. हर जने पे लागू नहीं होते, पर ये क्योंकि आपने निर्णय अंतरात्मा ने किया है यहाँ रहने का, अब ये डिसीजन अंतरात्मा करेगी, न कि आपकी वाइटल. तो इसलिए माँ कह रही है स्टेप बैक, अंतरात्मा को निर्णय लेने दो. अगर ऐसी बात है तो साधक भी अपनी वाइटल को अंतरात्मा बता बैठेगा. क्यों नहीं बताएगा. अरे नाम ही तो है ये. आप समझ रहे हैं हम किन डिटेल्स की बात कर रहे हैं. पर अभी भी डिटेल्स है, जब आपके स्वयं के साथ होगी या मेरे साथ होगी, ये कितनी पेनफुल होती है ये चीज, तब पता चलेगा. भाई यूं तो व्यक्ति कहते भी मुंह में छाला हो जाता है, हाँ भी दर्द देता है, पर जब आपके एक्चुअल होता है उस समय जो दर्द देता है वो तो आपके हो रहा है. कहने में तो ठीक है, आपने कह दिया मुंह में छाला, किसी समय अगर आपके हुआ हो, जो है ना, वो क्या जाने पीर पर आई जिसकी खुद की बीवाई नहीं फटी हो, वो पीर पर आई क्या जाने. तो इसलिए इनमें क्या समस्याएं हैं. एंड व्हाट ही चीफली वांट्स इज टू ड्राइव हर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम हर. इस चीज से हम रात दिन जूझ रहे हैं. एक तो आप ये स्वीकार करना शुरू कीजिए कि, और विश्वास करना शुरू कीजिए कि हम इसको प्योरली साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं. और मतलब क्या दृष्टिकोण हो सकता है, क्या आफत आ रही है ऐसी. और अगर दूसरा दृष्टिकोण हो तो इतना इसमें जाने की जरूरत क्या है, प्लेनली पढ़ लो और इसका अर्थ बता दो, जैसा कि जनरली किया जा रहा है. आपको समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो टेक्स्ट है, अभी आपको जो है सो है बस.
और आप वही प्रश्न लेोगे जो टेक्स्ट को समझाने के लिए होगा। जी आपको कौन सा सेंटेंस नहीं समझ में आया, तो उसमें तो कोई लड़ाई भी नहीं हो सकती। आपको गैप तो इंटरप्रिटेशन में आएगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इफ यू गो ही विल रिमेन, अगर तू आश्रम से चला जाता तो डेविल तो यहीं रहेगा। एंड नॉट ओनली ही विल रिमेन बट ही विल फील दैट ही हैज वन ए ग्रेट विक्ट्री, और तेरे जाने से डेविल और मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसको उसका काम तो हो गया। आपका मन मुटाव जो है, दो साधकों का मन मुटाव या ट्रांसपेरेंसी के अंदर कमी, मां के काम के विरोधी जो शक्तियां हैं वो खुश हो जाती है ऐसा करके। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं आओ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। अरे भाई, जो व्यक्ति आपसे आपके हित की ही बात कर सकता है, जहां और कोई दूसरी बात ही, साधना के अलावा और क्या बात कर सकते हैं अपन। तो जो इसके अंदर बीच में वेल आएगा वो किस लिए आएगा, क्योंकि व्यक्ति के कहीं ना कहीं कोई दूसरी बात आएगी। तो उसको ये महसूस होगा कि ग्रेट विक्ट्री हो गई, एंड विल सेट हिमसेल्फ विद ए डबल विगर टू अटैक हर थ्रू अदर्स। और तेरे जाने से उसमें डबल विगर आ जाएगा। विगर मतलब ज्यादा वो जोश आ जाएगा, जोश आ फिर। पावर आ जाएगा, और डबल पावर से माँ को और दूसरों को अटैक करेगा थ्रू अदर्स। तो चला ही जाएगा दूसरों के माध्यम से। अब दूसरे क्या कहेंगे, वो भी तो चला गया। जैसा जनरली अपन कह कहे गए ना कि आप ऐसे कैसे कह सकते, उसकी नियति हो सकता है वही हो, उसकी हो सकता है ये हो। तो अभी तो श्री अरविंद है इसलिए आप ये नहीं कहोगे। अरे मां श्री अरविंद की निकटता के अंदर उसका जो कल्याण है और कहीं क्या हो सकता है ये बताओ। पर ये तो मां श्री अरविंद है, इसलिए आप ये कह रहे हो। यू टॉक ऑफ नॉट गिविंग ट्रबल टू द मदर एंड टू मी, but do you not realize that nothing can be worse trouble to us than your going away? तू कह रहा मैं आपको और माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता, मेरे यहां रहने से आपको तकलीफ दे रहा हूं मैं, पर तेरे को इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है, ये चीज तेरे को एहसास नहीं है कि तेरे जाने से इससे ज्यादा वर्ष तकलीफ हमको नहीं हो सकती। और अच्छा, ये भाव आप अपने बच्चों के लिए या जिससे आपका कंसर्न है उसके लिए तो जानते हो, वाइटल की चीज तो आप ये जानते हो, पर आध्यात्मिक रूप से ये चीज का चला गया यार, उसका आध्यात्मिक नियति बिगड़ गई, नहीं कह सकते कि आपको कितनी डीप तकलीफ है। अब ये कैसे कम्युनिकेट करें हम, ये ऐसी तकलीफ भी होती है, ये कही थोड़ी जा सकती है, और कहो तो आप स्वीकार नहीं करो। The moods of revolt that come upon you are clouds that pass, but to see you leave us in this way and feel our love rejected and your place near us empty, ये अपन ने लिया है और उसका टाइटल दिया है लविंग लेटर। ये अपने सिलेक्शन में भी होना चाहिए। और ये शायद मैं गलत नहीं हूं तो दिलीप कुमार रॉय की अपनी खुद की किताब में भी मेंशन किया उन्होंने, क्योंकि ये उन्हीं के तो लेटर्स हैं। तो जो श्री अरबिंदो केम टू मी, इसमें है ये, एंड फील आवर लव रिजेक्टेड। श्री अरविंद क्या प्लीड कर रहे हैं आप ये देखो। ये वैसे ही जैसे ह्यूमन, आप जो ये जो बातें सो कॉल्ड प्रेमी प्रेमिका की बातें हैं कि भाई ऐसा मत कर, उसी की सी बातें हैं ये। और कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, श्री अरविंद कर रहे हैं। आप इसकी गंभीरता समझिए। एंड योर प्लेस नियर अस एम्प्टी, अगर तेरा स्थान हमारे पास जो है वो एम्प्टी मिलेगा हमको, कितनी तकलीफ होगी, तू समझ तो सही। अच्छा, ये श्री अरविंद क्या ये कोई बोलने के लिए बोल रहे हैं या वास्तव में कह रहे हैं? तो वास्तव में कहेंगे। आप समझ ही नहीं सकते कि डिवाइन लव क्या कर सकता है। ये डिवाइन लव है, और हम कोल्ड हैं। उनकी विसिनिटी में रह के भी हम ये अपराध कर सकते हैं कि गुरु को तकलीफ देने का अपराध तो बना है ना ये। Indeed a real trouble to us, and we would feel it more deeply than anything else you could do. तू और कोई दूसरी गलती यहाँ रह के भी कर सकता है, उससे ज्यादा डीपली हम तेरी यहाँ एम्प्टीनेस को महसूस करेंगे, और उससे ज्यादा ट्रबल्ड महसूस करेंगे। तू हमको कोई भी काम करके उतनी तकलीफ नहीं दे सकता, उतना डीपली हम ट्रबल्ड नहीं होंगे तेरी और किसी भी चीज से जितना तेरे जाने से होंगे।
ये लिटरल अर्थ है इसका। अगर आप में अंतरात्मा है तो वो गल के ये कह दी कि गुरु मैं आपको ऑफर करता हूं और मैं दोबारा कोई ग्रज नहीं रखूंगा। और हमारे रात दिन ग्रजेज हैं मेरे को साफ नजर आती हैं, कह सकते नहीं। ये जोरदार बात है, क्योंकि तुरंत फिर बाद में व्यक्ति कहता जी आप अपने आप को प्योर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे प्योर व्योर की बात नहीं है, जो ऐसे नहीं होता भाई जीवन में, और तरीके से भी होती है चीजें। यू नो दैट इट इज नॉट ट्रू दैट योर सोल डिजायर इज टू गो अवे। तुम जानते हो कि तुम्हारी एकमात्र इच्छा ये नहीं है कि तुम यहां से चले जाओ, ये तो तेरे को ये एक भाग में है। इट इज ओनली सो व्हेन यू आर इन दीज मूड्स, जब तेरे ये मूड्स आते हैं तब तू ऐसी बात करता है। एंड यू नो दैट दीज आर मूड्स दैट पास, और ये मूड पास अवे कर जाते हैं। एंड इफ यू अलाउ द मदर टू टेक देम अवे दे गो एट वंस। यदि माँ को तू अलाउ करेगा तो ये मूड चले जाएंगे। तो माँ तो वहां थी ही। अगर श्री अरविंद लिख रहे हैं तो मतलब माँ और श्री अरविंद तो दोनों ही हैं, तो अलाउ क्यों नहीं कर रहा वो? और अलाउ करने में दिक्कत भी क्या आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है इसमें अलाउ करने में कि माँ ये हटाओ? ये कह रहे हैं तू अलाउ अगर करेगा माँ को तो माँ ये हर लेंगी तेरा। उसके कॉन्शियसनेस क्लोज है ना उस पार्ट के अंदर, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, खुद ही डिसाइड कर रहा है। वो तो आपके हो सकती है, पर आप माँ को अलाउ भी नहीं कर रहे। तो तभी अलाउ नहीं होगा ना, जब तक हम ओपन नहीं होंगे तब तक माँ तो को कैसे अलाउ करेंगे? ये तो अलाउ अगर वो करेगा तो अभी भी अगर वो अलाउ करेगा तो कैसे करेगा? अब बेचारा ऑलरेडी तकलीफ में है, मान लो मैं डार्कर कॉन्शियसनेस में हूं, पर यदि मेरे अंदर कोई दूसरी चीज है जो ये कहते माँ आप ये देखो, माँ से बात करके। ठीक है, अरे भौतिक रूप से तो आप अब कैसे करो, पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है जो आपको इतनी नजदीक लगती है, उसमें अगर वो बंद हो गई, खोलने के लिए आप किसको कहोगे? कैसे कहोगे भी कैसे जब बंद ही हो गई? तो कुछ टाइम तो स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल तो आपके अंदर कोई डीपर चीज होगी तो होगी, डीपर है ही नहीं तो बोलने वाला तो आदमी ही खत्म हो गया। जब घर पे गुंडों का पोजीशन ही हो गया तो बोलेगा कौन? फिर उसको वक्त लगेगा प्रिपेयर होने अब में। भगवान ही जाने। आप इसकी गंभीरता समझो। शिकायत करने के लिए अंतरात्मा चाहिएगी ना, डीपर पार्ट चाहिएगा शिकायत करने के लिए, नहीं तो कौन सा भाग शिकायत करेगा? अगर आपकी कॉन्शियसनेस में डार्कनेस आ गई, ओपन आप मां से हो नहीं, अलाउ कर नहीं रहे, उस डार्कनेस में क्या इक्वेशन बैठती होगी? अभी तो विचार ही करना पड़ेगा। मैं खाली ये इश्यूज रख के छोड़ रहा हूं, ये आप बात बाद में दोबारा पढ़िए इसको, हम इसी से डील कर रहे हैं। तो ये जो प्रगति हमारे ग्रुप की हो रही है वो कोई इनसे इस तरीके के शब्दों से खाली ट्रांसलेशन से नहीं हो रही, ये एक्चुअल अनुभव और जो इससे फ्लो कर रहा है उससे हो रही है। नहीं तो शब्दों में खाली ट्रांसलेशन करो तो और भी तरीके से प्लेन ट्रांसलेशन किया जा सकता है उसका, पर जो हम भाव या इसके पीछे की जो चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं वो तो इसमें श्री अरविंद तो सारी की सारी कह रहे हैं, पर इन शब्दों में उस तरीके से नहीं है। वो तो शब्दार्थ करोगे तो वो तो जो है सो है बस। हम केवल प्योरली साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं इसको। द ट्रबल इज दैट व्हेन दे कम, ऐसे मूड्स जब आते हैं, यू टेक देम टू मच टू हार्ट। व्यक्ति उसको बहुत ज्यादा गहराई से ले लेता है, जिसको बोलते हैं ना तूने तो दिल पे ले ली ये बात, बोलते हैं ना कि मैंने तो ऐसे मजाक में ही कही थी उसको। कई बार आपकी बात दिल पे ले लेता है ना व्यक्ति। तो ये उसी तरीके से कह रहे हैं, जब ये ऐसी समस्या आती है तो बहुत ज्यादा उसको दिल पे, मतलब तू उसको मान मान बैठता है, एंड यू बिगिन टू थिंक दैट देयर इज नथिंग एल्स टू डू बट गो अवे। आई अश्योर यू, मैं तेरे को अश्योर करता हूं दैट दैट इज नो सॉल्यूशन, एंड दैट वी वुड मच रादर हैव यू विथ अस इवन विद दीज मूड्स देन बी सेपरेटेड फ्रॉम यू। इस मूड के बावजूद तेरे को हम यहाँ, तू मूड में रह, हमको दिक्कत नहीं है, तेरे को हम गले लगाने तैयार हैं, बजाय इसके कि तू हमसे दूर चला जाए। क्या प्लीड कर रहे हैं? मेरे को नहीं लगता कि किसमें जिसमें हार्ट हो वो रो नहीं पड़ेगा इसको।
पर हम हार्टलेस हैं, हमको सेंस ही नहीं है हम कितने ईगोइस्टिक हैं। आप रह रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो उसमें, और ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं इसमें एक पूरे जगतों का डिफरेंस है, पूरा भाव नहीं है ये। Compared with our love for you, the trouble they give us is mere dust in the balance. तेरे मूड जो है ना, वो तो mere dust in the balance. बैलेंस के अंदर कोई तराजू हो और उसके अंदर डस्ट पड़ी हो, वो उसमें कितना वजन में फर्क कर देगी। आप कोई चीज तोल रहे हो, उसमें कोई कण पड़ा है, वो आपके तोल में कि साहब पहले इसको पहुंचो और फिर तोलो, ऐसा तो नहीं करते ना आप नेग्लिजिबल है वो, आप तोल लेते हो उसमें, डस्ट इन दी बैलेंस। उसमें अगर पड़ी तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी हो रही उससे। कह तेरे मूड से हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कंपेयर्ड विथ आवर लव फॉर यू, हमारा जो तेरे लिए प्रेम है, क्या कहना पड़ रहा हमारे गुरु को, और हमको कुछ सेंस नहीं है इस बात का कि वो क्या कह रहे हैं। रीड दिस लेटर, टॉक विद द मदर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ट्रू सेल्फ, नेवर माइंड द रेस्ट। ये बिल्कुल इसी में ही है, श्री अरविंदो केम टू मी। और इन्होंने कहा कि भी उस समय मेरे को नहीं पता था, ये बाद में कह रहे मैं इतने साल ऑफ था। दिलीप मोरॉय शुरू में कह रहे हैं अपने इसमें प्रीफेस में या इसमें कि भी कितने साल तो मैं इसको यही नहीं पता कर पाए हुआ क्या ये मेरे साथ जब श्री अरविंदो चले गए। अब मैंने अपना पोइज रीगेन किया है, अब मैं सारी चीज को जो उनके साथ मैंने बिताई उसको मैं पेन डाउन करता हूं। आप अगर इन चीजों को वास्तव में आप इस चीज में आओ, एक तो इन चीजों को पढ़ो, और इनको करने के लिए जो मैं कह रहा हूं आपको, जो ये तामसिकता है, जो सुबह नहीं उठना है या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करनी है, अपनी मनमर्जी करनी है, और व्यक्ति को वो मनमर्जी लगती नहीं। अगर उसको लग जाती और माँ के प्रति ओपन हो जाता, काम ही बन जाता है। तो मैं बार बार क्या कहता हूँ, माँ से प्रेयर करना, पर वो प्रेयर सच्ची होगी नहीं यदि आप नहीं महसूस करो। प्रेयर कैसे कर लोगे आप? ये माँ को कैसे कह दोगे माँ इस अंधकार को हटा, यदि अंधकार महसूस ही नहीं हो रहा तो? ऐसे कैसे कह सकते हो कि अंधकार हटा? आपको अंधकार नहीं महसूस हो रहा, कैसे प्रार्थना कर लोगे? इसीलिए हम जो ये भजन गाते हैं या और वो रियलिस्टिक नहीं है। बहुत जबरदस्त मोस्ट लविंग लेटर्स में से ये है। अगर आप इसको चूक जाते हो तो ऐसे पत्र कम ही मिलेंगे जिससे हम गुजरे हैं अभी। हाँ, लेटर्स में भी है ये, पर वो तो रिपीट हुआ है। आपको श्री अरविंद को पढ़ने का तरीका एक तो चेंज करना पड़ेगा, और वो तब होगे जब आप उसके अंदर होगे। कोई बात इसके अंदर या कोई विचार आपके आता है या कोई भाव इसमें, शब्या जी, अनिल जी? अब इससे पता लग रहा है मतलब क्या कंपैशन भैया और क्या लव है इनका। इस लेटर में इतना गहराई है, हम लोग का के अंदर अभी वो भाव तो आया नहीं है। हम अपने नहीं अंदर आया के है। बारे में बोल रहे हैं, वो भाव अभी हमारे अंदर नहीं आया है। हाँ, लेकिन हाँ, आज इसको जो सुन के हमारे अंदर क्या कमजोरी है ये हम पकड़ रहे हैं पूर्ण कर। कमजोरियों से जो इतना कोई फर्क भाव नहीं हम पड़ता, कमजोरियों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कमजोरी तो हमारे अंदर होंगी ही, हम क्या कोई। वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन देखिए, मेन एक जो चीज है शब्या जी, निकटता मेन जो निकटता चीज है, आपके अंदर हम्म, यदि चैत्य का पावर आ जाता है या भगवान के प्रति ये हम्म, द्रवितता आ जाती है, वो सारे को हाँ गला देगी। जैसे भट्टी है, उसमें आप डालते हो लोहा भी है, पक्का लोहा भी है, जो गलाते हैं स्मेल्टर्स जो होते हैं, वो है ही इस चीज के लिए। इतना आप इतना सुनिए इस बात कृपा को, आप हम शब्या जी इस बात को सुनिए हम्म, कि आपके अंदर चैत्य ही है जो इस सारे भागों को गलाने की क्षमता रखता है। हम जनरली जो जिस चीज में रस लेते हैं कि मेरी प्रकृति में ये गांठें हैं, मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये है, मेरे में ये, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बने इस चीज के हैं।
अगर इन्हीं के माध्यम से सोच समझ के रास्ता हो जाता तो साइकिक की अपने आप में कोई विशेष जरूरत भी क्या है। साइकिक में ही वो पावर है जो आपके इन सारे भागों को गला एकदम जो करना है सो कर देगा। ऐसी भट्टी है जिसके अंदर तो आप जला के बाजार का जितना भी सब वेस्टेज है, जो कचरा है, वो डाल देते हो। कागज है वो वैसे जल जाएगा, लोहा वगैरह आप डालते हो ना ये मशीन के अंदर, आप एक एक की क्या छंटनी करोगे। तो ये द्रवित होने वाला भाव, इसी को बार बार मैं कहता हूं, अगर आप में वो नहीं है अभी तो आपको इंतजार ही करो, फिर बाद में ये कब आए। इसी की हम ये तैयारी कर रहे हैं यहाँ की, किस दिन आपके ये आ जाए। इसमें इतनी शक्ति है, नहीं तो एक एक गुण दोष आप देखो तो इतनी बड़ी लिस्ट है, सारी दुनिया की लिस्ट है ये तो। एक एक से आप मुठभेड़ करो तो शक्ति भी बहुत लगती है, टाइम भी बहुत लग जाएगा, और ये पता भी नहीं है कि ये वास्तव में हम परफेक्शन आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। मानक तो है नहीं, गुरु बताएंगे ये तो जब तक अनन्यता वाला ये पार्ट जो साइकिक वाला आप नहीं लाते, ओपन होते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरे एक शब्द के प्रति तो अनन्य हो। आपको कह दिया लिखो, और लिख के समय से दे दो कम से कम। आप किसी के प्रति भी वफादार, एक को तो पकड़ लो, वफादार तो हो। वफादारी एक ऐसा गुण है जो कहीं तो हो। वफादारी है किसके प्रति, पहले तो टटोलो तो सही, सुविधा के प्रति। वफादारी बहुत बड़ा गुण है, वही आपको लेके जा सकता है। वफादारी नहीं हो तो क्या आप कुछ कर सकते हो क्या, ये तो बताओ, क्योंकि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता ही नहीं। नहीं नहीं कर सकते। वो अभी तक है नहीं, नहीं। वो है नहीं। क्योंकि अगर मां शरीर में भौतिक रूप से होंगे तब तो ये बात आ जाएगी। वो तो ये पत्र हैं, यही कहते आया हूं मैं पहले दिन से। आगे चलते। हाँ अनिल जी। हाँ नहीं, इनको उसको पढ़ के पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसको पढ़ के मतलब वो एक जो उनका एक जो लव एंड कंपैशन जो है ना, वो नजर आता है। मतलब क्या चीज है, और वो किस नहीं तरह आ से सकता मतलब ये नजर, जब तक आप उस बहुत सेटअप में नहीं हो ना, ये कुछ समझ में बहुत नहीं आ बहुत सकता कि ये क्या है ये। बिल्कुल। क्योंकि आज ये जो 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 शब्द हैं, ये हर प्रेमी प्रेमिका को लिख रहा है इस तरीके से, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। हाँ नहीं, इन वो शब्दों ठीक है। की जो कीमत है, कौन व्यक्ति लिख रहा है, उसके शब्द की क्या कीमत है, हम दूर हैं इससे। हम बहुत ज्यादा दूर हैं। उनका प्रेम क्या आपको इतना अभिभूत करता है कि जगत नजर नहीं आता। जो मैं आपको जैसे कल कह रहा था, फिर ये हम्म। जगत, वो चेहरे मैंने देखे हैं, वो चेहरे देखने बाकी हैं। ये कोई ये नहीं कि वो बहुत सीरियस रहता है सारे दिन, ये बकवास है ये सब टोटल। श्री अरविंद की पहली फोटो देख के माने करो बाप रे ये क्या चेहरा है, मैंने तो ऐसा गंभीर चेहरा देखा ही नहीं श्री अरविंद का। वो तो दूसरे तरीके से, पहली फोटो जब श्री अरविंद की आई, बदमाश था वो जो फोटोग्राफर था। उसने जितनी में तय करी थी उससे ज्यादा पैसे मांगे, नेगेटिव्स नहीं दिए। हम्म। माँ ने कहा कितने भी पैसे ले ले, तो उसने नाजायज पैसे लिए। और माँ ने कहा अरे बाप रे ये क्या फोटो आई है, इतना गंभीर चेहरा। श्री अरविंद तो ऐसे रहते ही नहीं। आपने एक पिक्चर गढ़ रखी है, ये सब चीजों की आपको खाली इंप्रेशन है, सेंस है ही नहीं। फर्स्ट हैंड टच आने के लिए आपके बीइंग में चाहिए तो सही कुछ। और वो वेल्स हमने खुद ने डाल रखे हैं, ये आ रही है ना इस बात में। इसके लिए आप कुछ भी कर सको वो कम है अनिल जी। ये यदि आप कर सको और श्री अरविंद से मिल सको, तो इस जीवन की सार्थकता है। और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आप खूब समझदार हो, इन लेटर्स को खूब इनके ऊपर ध्यान दो। और जीवन की जितनी भी डिटेल्स हैं सब बकवास हैं यूं तो। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है फिर। बिल्कुल। ये चीज अगर मूव नहीं करती तो फिर क्या है। आई होप you have been able to recover or have begun to recover from the mass of suggestions that fell upon you with regard to the mother's relations with you and her feeling towards you, which have not varied from a constant loving kindness, affection and goodwill. अर्थ बताओ इसका देविका जी, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि I hope you have been able to recover or have begun to recover from the mass of suggestions that fell upon you with regard to the
कि मदर्स रिलेशन विद यू, relations with you. रिलेशंस विद यू, कि भाई उस व्यक्ति के अंदर ऐसे सजेशंस आए, तो वो जो सजेशंस थे कि माँ के प्रति, कि माँ के और उसके आपस के रिलेशंस, कि माँ ये नहीं कर रही है, वो नहीं, जो भी reservations आए होंगे, and her feelings towards you which have not varied from a constant loving kindness, affection and goodwill. So which have not varied माँ की तेरे प्रति जो फीलिंग है वो सदा से एक जैसी रही है, और वो फीलिंग है लविंग काइंडनेस, अफेक्शन और गुडविल। तेरे प्रति गुडविल रही है, प्रेम रहा है, लविंग काइंडनेस रही है, उससे माँ का जो भाव वो कभी वेरी नहीं हुआ। तो जो मास ऑफ सजेशंस, खाली एक ही नहीं, तेरे ऊपर पूरा का पूरा जो ये जमावड़ा जो आ गया है, जो पूरी टीम ऑफ सजेशंस तेरे पास आ गई है, वो हटा। स्पेशली सिंस द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम बंगाल, ये भी दिलीप कुमार रॉय को है। हर अप्रिसिएशन ऑफ द गुड वर्क यू हैव डन फ्रॉम फॉर अस, देयर हैज बीन कांस्टेंट एंड नेवर वेरीड। और स्पेशली विशेषकर बंगाल से आने के बाद तो ये तेरे प्रति जो लविंग काइंडनेस, अफेक्शन और गुडविल वो तो बढ़ गई, क्योंकि तूने हमारे लिए, क्योंकि वो आश्रम के लिए फंड रेज करने गए होंगे। अभी इन लाइनों के पीछे आपको बहुत चीजें, अगर आप वास्तव में सीरियस हो तो इस डेट का फिर बाद में दिलीप कुमार रॉय की पुस्तक में पढ़ लो। यहां तो लेटर है, पर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल तो दिया नहीं, ये तो जवाब है। और जवाब भी उतना ही दिया है जितना कि डिस्क्रीटली दिया जा सकता है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम कर दिया गया है, वो सोच समझ के। The suggestions that fell upon you were certainly the result of a passing despondency and nervous upset. ये जो सजेशंस तेरे आए, वो डिस्पोंडेंसी, तेरे अंदर जो पासिंग, हताशा का जो वाइब्रेशन पास किया, और नर्वस अपसेट। नर्वस अपसेट मतलब नर्वस अपसेट, जैसे घबराहट वगैरह हो जाती है, नर्वस सिस्टम जो है हमारे, उसको या तेरे आ जाता है, तेरे जैसे इमोशनली हाँ, इमोशनली हो सकता है वो आप। देयर वॉज नथिंग ऑन आवर साइड, हमारी साइड से कुछ नहीं है, नो कोल्डनेस। इसने श्री अरविंद और माँ के एटीट्यूड को कोल्ड बता दिया, डिस्प्लेजरेबल बता दिया, इसलिए ये शब्द काम में ले रहे हैं। नो कोल्डनेस, नो डिस्प्लेजर, कि तेरे प्रति डिस्प्लेजर नहीं है हमारा। नो इंडिफरेंस, या तू पढ़ा है आश्रम में, हमको तेरे से मतलब नहीं है, इंडिफरेंस यही होता है। एंड हैड दीज थिंग्स, दीज और एनी सिमिलर फीलिंग्स बीन देयर, न तो ये न इसी के तरीके की हमारे कोई तेरे प्रति कोई फीलिंग नहीं है। ये हमारे योग में ये है, अगर दूसरे योग में ऐसी बात करे तो गुरु कहते ठीक है, तो तेरे को जैसे जैसे वैसे कर ले। और किसी दूसरे योग में, क्योंकि उसमें प्राप्ति का भाव होता है, आप माला जपोगे प्राप्त करोगे, नहीं जपोगे तो तू चला जाए यार, कैसी आफत है तू तो। और दूसरे योग में ये एंटरटेन नहीं करता गुरु, आप समझ रहे हैं इस चीज को। एंड देयर नेवर वॉज एनी रीजन फॉर हर फीलिंग देम, शी कुड नॉट हैव and had no wish to manifest anything of the kind either by gesture or otherwise. उन्होंने मेरी तरफ ये जेस्चर किया, चला जाए यहां से, या इंडिफरेंस का जेस्चर किया, जो भी किया होगा, यूं एक बार यूं टाल दिया होगा या यूं कर दिया होगा, या अदरवाइज न तो उन्होंने ऐसा कोई जेस्चर किया, कोई एक्ट ऐसा नहीं था उनका जो जिसको तू इस तरीके से इंटरप्रेट करे कि माँ तेरे प्रति डिस्प्लेजर रखती है, या कोल्डनेस रखती है, या इंडिफरेंस रखती है। अच्छा, माँ के पार्ट पे आप ये सोचिए उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, या आपको ये कह दिया जाए वास्तव में आप अपने भक्त से या उससे प्रेम करते हो अपने बच्चे की जैसे, और बच्चे से तो आप प्राणिक प्रेम करते हो, इससे आप सच्चा आत्मिक प्रेम जिसको अगर कहा जाता है वो करते हो, तो प्राणिक प्रेम भी तकलीफ दे सकता है, तो ये वाला कितनी डीप तकलीफ दिया होगा, उनको सोचने को मजबूर किया होगा, या अपने आप को ये जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से, भाई हम नहीं कर रहे ऐसा कोई काम, हमने तेरे प्रति ऐसा भाव नहीं व्यक्त किया। क्या कोई जरूरी तो है नहीं ये कहना, भैया तेरे को जचे तो तू रह, नहीं जचे तो जाए यार, आफत क्या है। These were the suggestions of an adverse force,
which wanted to push you away from her and create a distance between her and you, so that you might be discouraged in your sadhana and if possible induced to go away from us. ये ही चीजों ने अपने पास से भी यहां से लोगों को दूर किया है या कम से कम अलग किया है। और जैसे ही अपने डीपर क्षण के अंदर आते हैं वो ये कहते हैं जो भी बच्चे कुछ भी समय यहाँ रहे, कल ही वो बता रहे थे कि उनके अंदर विशेष आकर्षण है यहाँ के लिए, यहाँ की जैसी बात आती है कि विशेष आकर्षण है, जिससे भी बात कर लो वो विशेष आकर्षण उस प्रेम का या उस चीज का जो उस बच्चे ने महसूस किया है। तो आप ये कहें कि आपने क्या चीज यहाँ की विशेषता रही है, ये इसको आप विशेषता मानते नहीं। It is impossible that we should ever accept the idea of your leaving us, and unthinkable that we should ever admit any sunderance between us. Sunderance मतलब काट के दूर कर देना, संडर अपार्ट मतलब जैसे तलवार से काट के दूर करते हो। तो ये हमारे लिए अनथिंकेबल है कि हम ये कभी इस चीज को एडमिट करें कि तू हमसे दूर हो जाए। This attack upon you, the depression and nervous upset and all these suggestions were part of a general attack. अच्छा ये बात कह भी नहीं सकते, ये तो उसने पत्र लिखा होगा तो श्री अरविंदो कह पा रहे हैं। पत्र के जवाब में श्री अरविंद कह रहे हैं मैसेज नहीं दे रहे, ये पत्र लिखा है तो कह पा रहे हैं। तो दिलीप कुमार रॉय के साथ विशेषता ये थी कि ये ओपनिंग बंद नहीं हुई इस तरीके से। कुछ लोगों को उन्होंने चला के कहा कि पत्र लिखो लिखो। यही बात अपन कहते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम हो सकती है पर बात करो, कॉन्स्टेंटली टच में रहो, ओपन रहो, लिखो, उससे ओकल्ट प्रोसेस होती है which has been raging against us from adverse forces for some time past, but I hope that the worst of it is over for you and that you will be able to go on untroubled in your sadhana. और अब हमको लगता है कि तेरा जो वर्स्ट जो पीरियड था वो अब ओवर हो चुका है और अब तू तेरी साधना में अनट्रबल्ड बिना किसी परेशानी या व्यवधान के तू आगे जा सकेगा। It is needless then to insist that she never thought of you as excluded from her light. ये इंसिस्ट कर रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं अब ये मेरे को लगता नहीं कि इसके ऊपर ये नीडलेस है, नीडफुल नहीं, नीडलेस मतलब इसकी अब आवश्यकता नहीं है कि इस पे अब मैं इंसिस्ट करूं किस पे कि तू ये सोचे कि माँ तेरे को अपनी लाइट से एक्सक्लूड कर रही है। ये विचार कैसे उठा होगा? ये विचार आया होगा ना कि माँ जो है वो मुझे एक्सक्लूड कर रही है। नहीं नहीं, पर उठाई कैसे होगा? ये तो लिटरल अर्थ है ही कि मेरे को अब ये इंसिस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज नीडलेस देन टू इंसिस्ट, कि अब मेरे को ये इंसिस्ट करने की आवश्यकता नहीं। ये श्री अरविंद कह रहे हैं तेरे को ये समझाने के लिए कि माँ ने तेरे को लाइट से एक्सक्लूड करने का विचार नहीं किया, विच इज ऑल्सो माइन, और मेरा भी यही विचार है। विच इज ऑल्सो माइन मतलब प्रकाश, जो लाइट माँ की है वो मेरी भी है, ये कह रहे हैं। लिटरली तो समझ रहे हो ना आप? हाँ जी। विच इज ऑल्सो माइन, विच मतलब लाइट, तो उस लाइट में से तेरे को न तो माँ एक्सक्लूड कर रही है ना मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। ये तेरे विचार उठा कैसे? दैट लाइट विल बी विथ यू एंड विल आई होप हेल्प टू लाइट यू ऑन योर पाथ टुवर्ड्स द रियलाइजेशन यू लॉन्ग फॉर। जिस चीज की तेरे उत्कंठा, यहां उत्कंठा शब्द आ जाएगा, लॉन्ग फॉर, जिस चीज की तेरे उत्कंठा है रियलाइजेशन की, उस पथ की ओर तेरे को हेल्प करेगी ये लाइट। इससे अब मानव प्रकृति की जो चीजें निकल के आ रही है उसको अब देखिए इसके प्रकाश में, ठीक है ना? ये कितनी रिवीलिंग है ये। उसमें वाइटल सजेशंस ऐसे आ रहे होंगे कि जो माँ इसके अलावा आ कैसे सकते हैं? साइकिक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसमें। अब आप ये देखिए, अगर साइकिक नहीं है तो आप भूल जाओ इसको, फिर तो निम्न शक्तियों के लिए पूरा पूरा चांस है, वो उन्हीं का साम्राज्य है यदि साइकिक नहीं है तो। अब ये अगली बार करेंगे।
आप समझ पा रहे हैं क्या है इनके अंदर? अगर इस दृष्टिकोण से नहीं देखो, क्या चीज हम चूक रहे हैं। क्यों अनिल जी? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त चीज है, मतलब ये पत्र पढ़ जाओ साइकोलॉजिकल। आप, जो दामोदर के पत्र है ना, इनको पढ़ो, पर इसी लाइट में, इस भाव में पढ़ जाओ। पर अभी जिस तरीके से शब्दों को मनुष्य काम में लेने लग गया है, इनसेंसिटिविटी हो गई शब्दों के प्रति। भाव व्यक्त करने में भी बहुत, पहले जब आप पत्र लिखते थे, प्योरिटी ऑफ फीलिंग रहती थी व्यक्ति के हाँ, लिए। एक बिल्कुल वो आत्मीयता वाली जो एक भाव होता है ना, अब वो आपको मिसिंग। जो, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बंद कर दिया, हाँ, वो पढ़ने मिसिंग। लिखने का किसी के पास समय नहीं है। आप ही तो कहते हो कि किसके पास समय है आजकल पुस्तकों के लिए, कि आप ये छाप छाप के भर दो चाहे अलमारियां, पढ़ता कौन है? अरे तो उससे तो मनुष्य जाति यहां पहुंच गई। शब्दों के प्रति एक जनरल इंसेंसिटिविटी हो गई। तो हम भी जो शब्द काम में ले रहे हैं, वो सामने वाले को, अब मैं धीरे 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 पहचान पा रहा हूं कि अपने लिए तो ये प्राण है ये शब्द, दूसरे वाले के लिए इंसेंसिटिव हो गए इस चीज के प्रति। बहुत बड़ा फर्क आ गया है। तो मां श्री अरविंद जिस समय ये लिख रहे थे, उस समय की गंभीरता आप ये समझिए, इस भाव की। अब अपना वो नेक्स्ट शुरू। मतलब कितना डिफेंसिव होके उनको करना पड़ रहा है, मतलब ये भी देख रहा हूँ मैं, मतलब उसको प्रेम है ये। मनाने के लिए। इसलिए प्रेम, श्री हाँ वही, अरविंद ने, मां ने ये कहा प्रेम। कि केवल डिवाइन लव वो चीज वहन कर सकता है जो हमने करी, रात दिन आंखें दे दी इन्होंने, आंखें दे दी। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वो ये कह रहे हैं, अब मैं, क्योंकि उनका नाम मेरे को पता चला, लेटर्स में तो नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि जो मैं हम्म। आपको कह रहा था, वो व्यक्ति कई पेज तक चेज कर रहा है श्री अरविंदो को, कि जी आप तो सुप्रामेंटल में ही रहते होंगे, सावित्री में रमण करते होंगे। क्योंकि लेटर्स मैंने पढ़े थे, उसमें मैंने नाम नहीं जाना था ये कर कौन रहा है ये काम। मैंने फिर दूसरा सोर्स पढ़ा और उसमें नाम पता चल गया कि ये व्यक्ति कर रहा है ये काम। वो नाम मैं आपको नहीं दूंगा, वो तो, ये चीजें तो खैर आ जाएंगी, कंप्लीटनेस से पढ़ो तो आप खुद के लिए वो नाम ट्रेस करो, क्योंकि वो आप कह दो आप यहाँ नाम पब्लिक में दे रहे हो, हमारे उनके प्रति तो रेस्पेक्ट है या जो भी है। वो व्यक्ति कंटिन्यूअसली, श्योरबिंदो उसको कह रहे हैं, भैया तू क्या समझ रहा है यार, पूरी पूरी रात मैं लिख रहा हूँ, पूरे पूरे दिन लिख रहा हूँ। उसने कहा रेस्ट करते होंगे इतने घंटे तो आप। बहुत विचित्र पिक्चर निकल के आती है। यदि आप में हार्ट है तो वो द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता, और आप अगर अभी यूं ही हो तो हम सूने ही हैं। एक्चुअल में तो फीलिंग से सूने हैं हम। फीलिंग का सेंस नहीं है कि गुरु के प्रति क्या होनी चाहिए, हम एकदम सूने हैं। हार्ट द्रवित करता ही नहीं। नहीं, गुरु को ऑफर करने के अलावा और कोई दूसरा भाव कैसे आ सकता है? और चलो आ गया, भारी भोजन करने से कोई दूसरी चीज आ गई तो बाद में कम से कम मांज लो, उसको साफ कर लो। कोई बर्तन आपने खाया गंदा हो गया तो साफ कर लो भाई उसको। एस्टेब्लिश रुक कैसे सकती है वो चीज? पर अभी तो बहुत दूरी है। ये कब तो पुकार आ जाए, कब ये चीजें आ जाए। तो यहाँ विराम एक बार देते हैं। नेक्स्ट अपना जो सिंथेसिस है वो पकड़ लेते हैं। 1 मिनट दीजिए मेरे को।